लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Vijay Joliji and his Delhi study group for organizing this very important meeting. In fact, it is a sad state of affairs that we are 110 crore Hindus in the world. We have not organized even 110 meetings protesting against the genocide of Hindus in Bangladesh. It shows so much apathy, indifference to the sufferings of our own people. So, therefore, I once again congratulate Dr. Vijay Joliji for taking this initiative, and I also thank him for having me with you all for this event. Pujaniya Lokesh Murji, Alok Kumar ji, Vijay Mehta ji, and other persons on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. ये भारत जो बांग्लादेश में जो नरसंहार क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, उसका जो समस्या का मूल कारण क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, उस बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ, क्योंकि इसका ऊपर बहुत लिख सकते हैं, बहुत लिखा भी है. Is it working? Oh. Laptop is not working? Right circle is working. Conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets, and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam from 800 AD to 1700 AD, that is 900 years. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without, from outside, or multiplying from within. The Hindus had allowed their strength to be wasted in eternal division and war. They had adopted religions like Buddhism, which unnerved them for the tasks of life. This was in 1935, American historian talking about the kind of genocide that Hindus had undergone. Next, please. Yeah. As we all know, Islamic invasion in India started in 711 CE, that is Common Era, with the Muhammad bin Qasim attacking Sindh. And Hindus fought so valiantly. It took 1,000 years for the present day Pakistan to become Muslim majority. It means every year they could not advance more than 2.5 kilometers on an average. That was the level of heroic resistance and fight by Hindus. However, there is one important thing. जो पाकिस्तान तक जो भूभाग है वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया था, बट रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाकी भारत वो हिंदू मेजॉरिटी था. यहाँ मुगलों जो राज चला रहे थे फिर भी यहाँ हिंदू मेजॉरिटी था, परंतु बंगाल में यहाँ से 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर दूर से जो पूर्व साइड में वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया. ये बीच में पूरा हिंदू मेजॉरिटी है था. ये पूरा एकदम विचित्र बात है. ये कैसा हुआ उसका बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ. नेक्स्ट प्लीज. बंगाल के ऊपर जो इस्लामिक दुराक्रमण जो हुआ पहली बार 1204 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी
वो सेना जो डायनेस्टी था, वो राजवंश था, उसको मार के वो वहाँ राज स्थापन किया था 1204। दैट मीन्स अभी कितना 820 वर्ष पहले। परंतु बंगाली हिंदूज दे फॉट as valiantly as other Hindus, and for 300 to 400 years they fought so much that the Muslim population up to 16th century was minuscule, बहुत कम होता। जितना जो बख्तियार खिलजी और जितना जो मुस्लिम राजा लोग ने जो उसका दुराक्रमण जो ये किया था, फिर भी उसका जो मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाया, बड़ा आपको 300 to 400 years, but things changed from 16th century. This is India map, आपको दिख रहा है? ये जो ऊपर जो ये गोल है, दैट इज पाकिस्तान साइड है, वेस्टर्न इंडिया जो मुस्लिम मेजॉरिटी बना था। इस साइड में अभी जो बांग्लादेश है, इस साइड में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी बना है। अभी सरप्राइजिंगली ये विश्व में अरबों के बाद बंगालियों सबसे ज्यादा मुसलमान है। विचित्र की बात है। बट हाउ डिड दिस हैपन? हाउ डिड सो मच मुस्लिम पॉपुलेशन एमर्ज इन बंगाल, सो डिस्टेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट? आप अरब से मक्का मदीना से देखिए इतना दूर है, इवन पाकिस्तान से भी 2000 किलोमीटर दूर है। हाउ डिड दिस एमर्ज? बट वेयर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल जो मध्य भारत और इवन जो गंगा बेल्ट और जो हिमालय, ये सब में तो कोई ये मुसलमान मेजॉरिटी नहीं हो पाया। ये कैसा हुआ? इसका बारे में एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, तो पहले भी जो विल ड्यूरेंट था 1935, वो भी अमेरिकन हिस्टोरियन था। अभी जो रिसेंटली जो लिखा है वो भी एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। वो एक पुस्तक लिखा है, द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर 1204 to 1760। उसमें वो लिखा है दैट इन द टिपिकल जॉनर ऑफ व्हाट ही सेड, इन द टिपिकल जॉनर ऑफ इस्लामिक अपॉलजी एंड नेगेशनिज्म, दैट मींस कुछ नहीं हुआ है, ऐसा फोर्स्ड कन्वर्जन है, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ, ऐसा बोल के जो चल रहा था ये। He theorizes out of thin air that Islam in Bengal was not a product of forced conversion, but a matter of environmental, socio-economic and temporal specificity of Bengal in 16th century। वो बोलते हैं 16th सेंचुरी 12 माने जो 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक मुसलमान मेजॉरिटी नहीं बन पाए बंगाल में, परंतु 16th सेंचुरी हुआ है। और उसका कारण ये बोलते हैं वो जो सामाजिक कारण, वो पर्यावरण के कारण, इस आर्थिक कारण, इसी कारण से वो वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बना है। इससे सबसे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बट द क्वेश्चन इज, जो 16th सेंचुरी में जो पर्यावरण थे, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थे, वो सब तो इससे पहले भी था, उस समय क्यों नहीं बन पाया? और उसके बाद में बंगाल का जो सराउंडिंग एरिया, उधर असम, इधर बिहार, इधर उड़ीसा, ये इस एरिया में भी जो सामाजिक परिस्थिति, जो पर्यावरण में एक ही है, उधर इतना तो अंतर नहीं है। सो माय पॉइंट इज दैट the Bengali Muslims, whether they are in Bangladesh or in India, they are not product of peaceful conversion. They are product of forced conversion. But how did this forced conversion happen? The question is, जब 300 साल जो हिंदू बंगाली हिंदू ने इतना जो दुराक्रमण को जो प्रतिघटन किया है, विरोध किया है, युद्ध किया है, परंतु वो 16th सेंचुरी से 300 साल के बाद ये क्यों हुआ है? इसका कारण ये है, मैं क्षमा करता हूं सभी हिंदू बंधुओं को और बाकी सभी को, क्यों? हम सच जानना चाहिए। इतिहास का मतलब है सच जानना चाहिए। जब हम सच जानते हैं, जब हम सच जानते हैं, then only we can find solution.
अगर कारण का मूल कारण क्या है, किसी समस्या का मूल कारण क्या है, जब हमको जानकारी नहीं मिलता है, हम उसको समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें किसी का मेरा ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ये बहुत, मैं उसको बहुत मानता हूँ। मैं उसका जो मणिपुर में काम कर रहा था, DIG CRPF, जो 2005 से 2006 तक, उसका एक चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा ये शिष्य था, शांति दास। हमने एक गांव को जो प्रतिष्ठा वहाँ जो स्थापन किया था, बिकॉज CRP कैंप वहाँ लगवाया था, उस गांव का नाम मैं शांति खुनाव नाम में उसको दिया था, बिकॉज मैं उसको मानता हूँ मैं। सो देयरफॉर आप किसी अलग मत सोचना, मैं जब जो ऐतिहासिक जो विषय है सच बोल रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने वो 1486 में उसका तो जन्म हुआ था और 1534 में उसका जो देहांत हुआ था। वो भक्ति योग, भक्ति जो मार्ग, इसको बहुत पॉपुलराइज किया था। क्यों उसको किया था, उसका मतलब उसका ये मीटिंग में वो चर्चा करने का नहीं है, बट वो बंगाल में इतना पॉपुलर हो गया था। आई मीन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग, दैट इज हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, खाली हरे कृष्ण, हरे राम भी नहीं, हरे कृष्ण, वो भजन कीर्तन उससे ये सब किया था। और वो डिस्प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस जो भक्ति मार्ग का जो अत्यंत उसको प्राधान्यता दिया था, वो इतना पॉपुलर हो गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमको क्या बताया, तीन जो उसका संतुलन है, जो त्रिगुणास, त्रियोगास। नेक्स्ट प्लीज जी। ओके, सो त्रिगुणास, त्रियोगास, त्रिमार्गास, दैट मीन्स सत्व रज तमो, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो ये सब ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये तीनों जो है ये समाज को, व्यक्ति को संतुलन रखता है। सपोज आप देख लीजिए, हम खाना में खाली मीठा खाए, क्या हो जाता है, षड रुचि होना चाहिए, सभी रुचि खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। वैसा ही सभी मार्ग, सभी गुण, ये सब होने से ही समाज या व्यक्ति उसका एक संतुलन होके एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम होता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ये रज गुण और तमो गुण को पूरा एकदम वो नेगेट करता है। तो बोला केवल भक्ति मार्ग करना है। इसका कारण से क्या हुआ, द बंगाल सोसाइटी बिकेम एफेमिनेट। उसका तो निर्वीर्य हो गया समाज को, तो पूरा समाज को जो फाइटिंग स्पिरिट था, जो लड़ाई करने का जो मन था, वो सब हो गए, तो सब बंद हो गया। और वी बिकेम, द बंगाल सोसाइटी निर्वीर्य हो गया था, दुर्बल हो गया था, डोसाइल हो गया था। इट इज बिकॉज ऑफ दैट, जो 16th सेंचुरी में जब चैतन्य महाप्रभु का जो वो आया था, उस समय से बंगाली हिंदूज स्टॉप्ड फाइटिंग मुस्लिम्स, and then Hindu downfall started in Bengal, and it is from that only we have now Bengal, the Muslim majority emerged in Bengal. Next please. तो कौन ऐसा ये इस विश्व में जो सुलगी जी ने जो सुलगी जी है ना, चला गया, ओके, ये has given को अच्छा कविता भी बताया। इस विश्व में शांति को कौन स्थापित कर सकते हैं, जो बलशाली कर सकते हैं, दुर्बल लोग का नहीं, कभी नहीं कर सकते। आप जंगल में आप सिंह या आपको व्याघ्र, ये दोनों ही शांति स्थापन कर सकते हैं। और ये छुआ नहीं कर सकते, ना तो ये हिरण नहीं कर सकते, ना जो बकरा करता नहीं, ये सब नहीं कर सकते हैं। सो जिसके पास बल है वही कर सकते हैं। परंतु दिस इज व्हाट हमारा देवी देवता ने बताया है। उसका जो हमारा जितना देवी देवता का मूर्ति देखिए, उसका हाथ में किसी न किसी एक आयुध रहता है। भगवान शंकर के पास त्रिशूल रहता है, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र रहता है, और माता काली के पास कितना आयुध रहता है।
सो उसका मतलब ये है समाज कभी निर्वीर नहीं होना चाहिए, निरायुध नहीं होना चाहिए और व्यक्ति भी निरायुध नहीं होना चाहिए। ये फाइटिंग स्पिरिट दैट वी मस्ट फाइट फॉर व्हाट इज आवर्स। जब धर्म हमारा है, हम धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए आगे आना चाहिए। परंतु ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो भक्ति मार्ग, केवल भक्ति और रज और तमो गुणों का जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, और होने से इसका जो दुष्परिणाम क्या होता है, बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश अभी बांग्लादेश जो वहां जो खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ हिंदू डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट प्लीज। फिर मैं जो विल ड्यूरेंट जो पहले जो बोला था, इट इज सेम थिंग। अब अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान 50-100 साल का अंदर में वो मुसलमान इस्लामिक सोसाइटी बन गया। जो जब इस्लामिक दुराक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, जो उस समय गांधार बोलते थे, वो गांधार का ऊपर जो हुआ था वो 50-100 साल के अंदर पूरा जो मुसलमान बन गया। परंतु बाकी जो प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, अभी जो पंजाब, ये सब तो करने के लिए 1000 साल लगा। क्यों? वहां हिंदू थे। अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट बन गया। बुद्धिस्ट पैसिफिक रिलीजन है, अहिंसा परमो धर्म, धर्महिंसा तदैव च। वो खाली ऊपर वाला लाइन लेके चला है और नीचे वाला लाइन वो भूल गया। धर्महिंसा तदैव च वो भूल गया था। उसी वजह से अफगानिस्तान 100 साल का अंदर मुसलमान बन गया, whereas it took 1000 years for rest of India, particularly northwest India, to become Muslim majority. So next please. And then so therefore जो डॉक्टर मुनि जी यहाँ है, मैं उसका थ्रू में और आलोक जी कुमार जी का माध्यम से, उसका माध्यम से मैं वो अनुरोध करता हूँ, जितना हमारा जो प्रवचन हो रहा है, हमारा जो गुरु प्रवचन का जो देते हैं, कभी भी मत बोलना है अहिंसा परमो धर्म। जब बोलना है तो वो सेकंड स्टैंजा भी बताइए। हिंदू समाज को निर्वीर्य मत कीजिए, हिंदू समाज को बलोपेत कीजिए। और माताओं, जितना माताओं है, आपका बच्चा लोग को भी वो ये डराना नहीं है। ऐसा नहीं है उसको तो दुष्कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें, मैं ये नहीं बोलता हूँ। उसका जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है बताइए, पर उसका साइमल्टेनियसली उसको बताना भी है। जो जब ये कोई चीज, कोई वस्तु आपका है, आप उसको रक्षा करने के लिए आप लड़ाई करना है, ये बताना चाहिए। देन हिंदू जेनोसाइड इन 1947, जो पार्टीशन का समय में आता हूँ, बीच में तो बहुत साल हो गए। मुस्लिम लीग जो 1947 था, वो पूरा हेल बेंट ऑन मुस्लिम लीग चाहते थे, जो स्वाधीनता संग्राम जो होने का समय है, वो चाहते थे हम पाकिस्तान बनाना चाहिए, मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज है हम पाकिस्तान बनाना चाहिए, और कांग्रेस उसको अपोज किया था। जनवरी 1946 में इलेक्शन हुआ था। पूरा जो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था, उस समय उस इलेक्शन में 9 out of 10 मुस्लिम्स, that means every 10 मुस्लिम, that means अगर 10 मुसलमान लेके, that means 90% of the Muslims they voted for Pakistan। जनवरी 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, 90% of the Muslim voted for creation of Pakistan। उसका डेटा ये है। परंतु जब भारत का विभाजन हुआ था, 90% of the Muslims stayed back in India। इसका कारण क्या है वो तो बहुत है, आपको बता। और नेक्स्ट प्लीज। उसी समय जब भारत का विभाजन हुआ था, अलग अलग एस्टिमेट करते हैं 2 लाख से लेके 20 लाख तक जो लोगों को मर गया था। परंतु उसके एग्जैक्ट फिगर तो बिकॉज उसका स्टडी तो ठीक नहीं हो पाया, अभी तो एविडेंस भी नहीं है। सो इवन जो 2 लाख से लेके 20 लाख में
उसमें से अधिकांश लोग हिंदू थे। क्यों हिंदू थे? बिकॉज जब 90% मुसलमान यहाँ रह गया है, ये इधर से उधर जाने वाला कम है, बट सब लोग उधर से जो आने वाला था हिंदू, उसको they were waylaid, abducted, raped and killed. एंड हमारा संविधान कल थे संविधान का जो दिवस, हमारा संविधान में एक शब्द भी नहीं है ये भारत का विभाजन हुआ था। अगर जो संविधान आप पढ़े उससे ये पता लगता है भारत का भी विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। देन when it comes to the 1971 में जो सेकुलर जो शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना जी का जो पिताजी, वो बांग्लादेश लिबरेशन का जो बहुत लड़ाई करते थे, परंतु उसका इतिहास क्या है? वो मुस्लिम लीग का लीडर थे। 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया, दैट मीन्स डू और डाई, डायरेक्ट एक्शन, पाकिस्तान चाहिए, उसका ये एक रूपकल्पना करने वाला जो रूपकल्पना किया था, उसमें से ये भी एक मेंबर था, शेख मुजीबुर रहमान। और जो कलकत्ता और नौखाली और उस एरिया में जो 10,000 से अधिक हिंदुओं को मारा गया था, उसका आर्किटेक्ट भी यही था। देन जो विजय जानी जी ने बोला था दैट इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश फॉर्मेशन, डेफिनेटली वी हैव मिडवाइफ्ड बांग्लादेश फॉर्मेशन। जो बांग्लादेश में उस समय एक मुक्ति वाहिनी बोल के बनाया, मुक्ति वाहिनी, that means liberation force. That liberation force was under the control of Sheikh Mujibur Rahman. जब 1971 में जो लड़ाई चल रहा था, पाकिस्तान आर्मी किल्ड 30 लाख लोग, 30 लाख हिंदुओं को, 3 मिलियन, 30 लाख in 10 months period. That means average per month 3 lakhs. That means per day कितना होता है देखिए। परंतु जिस मुक्ति वाहिनी को हमने खड़ा किया था, भारत खड़ा किया था, वो लोग कभी भी एक हिंदू को भी बचाने के लिए प्रयास कभी नहीं किया। जो डॉक्टर विजय जानी ने बोला था ना, क्यों हम किया था, बट फिर भी वो लोग क्यों हमारा जो क्यों why are they not grateful to us? So this is the history of Mukti Bahini. This is the history of killing of Hindus in Bangladesh during Bangladesh liberation. And not only that, even till today, वो उसका ऊपर जो अत्याचार, वो जो प्रकार उत्पीड़न, जो प्रकार नरसंहार, जो नरसंहार को तेलुगु में जो हम बोलते हैं मारण होमम, दैट मीन्स जो यज्ञ चला रहा है, जो हिंदुओं को मारने के, इसका ये आप देख लीजिएगा। दिस इज द फिगर्स, पॉपुलेशन फिगर, जो जनसंख्या का फिगर्स है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान साइड, अभी पाकिस्तान में 13% हिंदू थे। आज लेस देन 1.2% आसपास में है। That means 1947 जो अभी कितना साल हो गया, आई थिंक अराउंड 76 years, 76 years में 13% पॉपुलेशन came down to 1.2 in Pakistan, Hindu population. And Bangladesh में जब 1947 में 23% पॉपुलेशन थे, आज 8% है। 15% population has been killed, converted or destroyed, annihilated. This is the level and scale of Hindu genocide. Simultaneously, मुसलमान का जो previous slide please, Muslim percentage in Pakistan it went up from 84% जो 1947 में था, जो
भारत का जो विभाजन हुआ था, अभी 96.6, और वैसा ही जो बांग्लादेश में उस समय 76% था, आज 91% मुस्लिम है। नेक्स्ट प्लीज। देन देयर इज अ सेकंड इश्यू, बृहत्तर बांग्ला। कोई सुना था? इसमें आई थिंक बंगाली लोग कुछ है ना यहाँ? कोई है बंगाली लोग? बृहत्तर बांग्ला, दैट मीन्स ग्रेटर बांग्लादेश, बृहत बंगाल। ये पिछले 100 साल से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बंगाल, वो सब लोग ये चाह रहा है तो बृहत्तर बांग्ला बनेगा, ग्रेटर बंगाल। उसका इवन जो सुभाष चंद्र बोस जी का उसका यंगर ब्रदर, छोटे भाई शरद चंद्र बोस, वो भी उसका समर्थन दिया था उस समय। ही वाज सीपीआई लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लीडर थे, जो सुभाष चंद्र बोस का जो छोटा भाई। और ये बृहत्तर बांग्ला क्या है? बृहत्तर बांग्ला उड़ीसा से लेके, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अभी जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब एरिया वो चाहते हैं ये मुस्लिम कंट्री होना चाहिए। I'll complete in 2-3 minutes. So एक छोटा घटना हुआ था, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला बोल के असम का उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे, बट चीफ मिनिस्टर है। वो क्या किया था, बांग्लादेश से मुसलमान को लेके वहां असम में वो सेटल करने के लिए वो एक स्कीम स्टार्ट किया था। दैट स्कीम नेम इज ग्रो मोर राइस। वो स्कीम को जो लॉर्ड वेवेल उस समय जो वाइसराय था, वो बोला ये ग्रो मोर राइस नहीं है, ये धान चलाने के लिए ग्रो मोर मुस्लिम्स है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ thought they have, long term vision. Then अभी जो कुछ लोग मुझे पूछ रहा था, when I was working in Manipur and also in my कलकत्ता में IGCRP रहा, जब इतना जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू बांग्लादेश छोड़ के भारत को क्यों नहीं आते हैं? बहुत लोगों को ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, बट इसको नहीं आने देते। Hindus in Bengal and Pakistan are under constant vigil. कारण क्या है? एक तो वो वहां से इधर आने से जो बृहत्तर बांग्ला नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर उधर से हिंदू इधर आके जो बॉर्डर एरिया में अगर सेटल हो गया तो ये बॉर्डर एरियाज विल नॉट बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी, सो दे ओनली सेंड Muslims as illegal immigrants to India. That is why today, as per the UN population report, more than 4 crore Bengali Muslims are residing in India. This is the United Nations population उसका जो फिगर है. Then जो one of the good things ये जो present government has done was the Citizenship Amendment Act 2019 में हुआ है, नहीं 2019 और 20, आई थिंक 2019. उसमें क्या है, 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज भारत में आ चुके हैं, जो आने वाले का नहीं है, जो आ चुके हैं, उसको सिटीजनशिप देने के लिए कुछ प्रावधान बनाया था. उसके बाद में आप सब लोग देखा, याद होगा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, याद है? कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी बात है. और पूरा देश भर एंटी CAA, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसका हुआ था. इसका मूल कारण बहुत कम लोग जानते हैं. इसका मूल कारण यह है, जो बृहत्तर बांग्ला हमने जो बोला था, उसका जो प्लान, दे डू नॉट वांट दैट हिंदूज टू कम हियर. इवन अगर छोटा भी अगर उसको कुछ बेनिफिट मिले, जितना जो बांग्लादेश में हिंदू है वो सब इधर आ जाएंगे.
So their plans will be adversely affected in creating Bangladesh, Brihatar Bangladesh. So that is the reason why they protested against CAA, which was giving only very minor benefits to Hindus and others who came from Bangladesh and less number of people from Pakistan. इसका बारे में जो लास्ट तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो यूएसए का जो ट्रम्प अपॉइंटमेंट किया है उसका एक छोटा वीडियो हम चलाते हैं प्लीज. Hindus and religious minorities in Bangladesh. People who continue to be targeted and persecuted to this day. The height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and killed. As a member of Congress, I introduced a resolution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and killed Hindus. 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and began. Okay, she has वो जो अमेरिका का जो तुलसी गबार्ड जी है, she also condemned it but explained the problem. Then जो जितना जो हमारा मीडिया है, जितना हमारा इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई इसका बारे में बात नहीं करते हैं. हम हिंदुओं भी हम भी बात नहीं करते हैं. Their silence is actually encouraging jihadis. अगर वो उसको खंडन करते थे, then वो definitely उसका ऊपर कुछ ये प्रभाव पड़ता होगा. But these people are silently supporting the jihadis. तो 1971 में जो भारत सेना का जो सेनापति थे श्याम मानेकशॉ, एमसी में जो बिफोर दैट प्लीज प्रायर टू दैट गो बैक. उसका जो ही वाज अ मिलिट्री क्रॉस, दैट्स व्हाई एमसी. जब 30 लाख लोग हिंदू को मारा गया था, या वो 30 लाख हिंदुओं को मारा गया था, he did not even report that बांग्लादेश में हमारा जो आर्मी जो थे वो उस समय वो by the time they reached they were already killed. But then the fact was not even reported. This is how the Hindu genocide is covered up. We are grateful to Mr. Trump and his Director National Intelligence, Tulsi Gabbard for their unstinted support and for condemnation of genocide of Hindus in Bangladesh. And now that they have already been elected, we appeal to them that they should effectively intervene and tell Bangladesh authorities and Bangladesh government that this should stop immediately. And condolences. We pay our teary homage to our Hindu brothers and sisters of Bangladesh who were killed simply for being Hindu. उसका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई हिंदू था वही गुनाह है. And convey our heartfelt condolences to their near and dear. And we also strongly condemn the program against Hindu minorities in Bangladesh and appeal to the United Nations and all countries, the international community, the global human rights groups, and all people to condemn and intervene to stop Hindu genocide and slave Hindu minorities in Bangladesh. We also request the Office of High Commissioner for Human Rights to effectively intervene apart from condemning it. And with this, I thank all of you